بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے آیت نمبر 11 اور 12 پڑھنی ہے. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے مطلب آپ کو پہلے سے آتے ہیں. واو کا کیا مطلب ہے؟ اور. لہم لا کا مطلب کے لیے، ان کا مطلب ان کے لیے. اچھا لہم ان کے لیے، ٹھیک ہے. لا نہیں یا نہ. اچھا تفسدو کا کیا مطلب بنے گا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم. اور آگے کیا لفظ ہے؟ فساد. سین دال، یہ فساد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. تم فساد کرو، ٹھیک ہے. تم فساد کرو. فی کا کیا مطلب ہے؟ فی میں. ارض ارض زمین. قالو قالا کا کیا مطلب ہے؟ قالا یہ نہیں پڑھا ہم نے، اس کو چھوڑو پھر آج پڑھ لیں گے. انما نہیں اس کا بھی یہ مطلب ہمیں پہلے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نئے مطلب دیکھ لیتے ہیں. وا اور اذا جب. اذا ہوگا یا از ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ اذا جب. اذا ہو یا اذ ہو، دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. ٹھیک ہے. اذا زلزلت الارض جب زمین ہلا دی جائے گی. زلزلہ زلزلے سے ہے، اور زلزلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلنا. ٹھیک ہے. تو جب اذا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین ہلا دی جائے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی. اذا جب، ٹھیک ہے. تو اذا ہو یا اذ ہو، کیا مطلب بنے گا؟ جب. قیلا، یہ بھی قالا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، قالا کا مطلب ہوتا ہے کہنا، یہ قول سے ہے، ٹھیک ہے. کہنا. قیلا قیلا کا مطلب ہے نہ، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا. ٹھیک ہے. قیلا کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا. لہم ان کے لیے. لا تفسدو تم فساد نہ کرو. صرف تفسدو ہوتا تو تم فساد کرو. لا تفسدو تم فساد نہ کرو. فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. قالو، یہ بھی قالا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا. اور قالو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، یہ واو جب آتا ہے آگے جڑا ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. تو قالو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا، یہ بے شمار دفعہ آتا ہے قرآن میں، قالا اور قالو دونوں. قالو انہوں نے کہا. انما انما یہ پورا لفظ ہے ایک، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، اس کو یاد کرنا پڑے گا. انما صرف. نحنو ہم. نحنو ہم، ٹھیک ہے. مستہزئون یہ استہزاء سے نکلا ہے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق، اڑانا، مذاق کرنا. مذاق کرنے والے. مستہزئون مذاق کرنے والے. قالو انہوں نے کہا. انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرنے والے، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نہیں، یہ آیت غلط لکھی ہے، آپ نے بتایا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا یہ کیا ایسا لکھا ہے. انما نحن
मुस्लिहून। فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. मुस्लिहून आपको ये था जो वाली आपको ये इस्लाह से है, इस्लाह से है, इस्लाह का मतलब थोड़े सिर्फ इस्लाह करने वाले, किसी चीज को सही करने वाले। ये फसाद का उल्टा है, फसाद किसी चीज को सही करने वाले, ठीक है, ये किसी चीज में की दुरुस्तगी करने वाले, ठीक है। अब ये अगर फर्ज करें कालीन टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ इसकी इस्लाह कर दो, मतलब इसको सीधा कर दो, सही कर दो इसको, इसको ठीक अच्छा है। रास्ते पे सवाल जुमले के अंदर कोई गलती है, अब यहाँ पे मुस्तहज़िऊन लिखा हुआ था तो मैंने इसकी इस्लाह की है, इसे मुस्लिहून सही कर दिया, मतलब ठीक है। इस्लाह का मतलब समझ आ गया। जी गाड़ी को ठीक करना उसे भी इस्लाह करना कह सकते हैं, मोटरसाइकिल को ठीक करना। ठीक है। तो इस आयत का पूरा तर्जुमा देख लेते हैं। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा गया उनके लिए ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, नहीं करो तुम फसाद न करो जमीन में ज़मीन में, जमीन में क़ालू उन्होंने कहा उन्होंने कहा और इन्नमा सिर्फ नहनु हम मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है। हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं, हम फसाद किधर करते हैं, हम तो चीज़ों को सीधा करते हैं, ठीक है। तो फसाद इसका उल्ट है, मतलब इसको खराब कर, कालीन अगर सीधा बिछा हुआ है इसको खराब कर देना ये फसाद है, ठीक है। गाड़ी ठीक है उसको खराब कर देना ये फसाद है। बाइक खड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल साइकिल खड़ी हुई है उसमें से हवा निकाल देना ये फसाद है, ठीक है। तो किसी सीधी चीज को, अब मुआशरा सीधा जा रहा है, ठीक है, लोग बड़े अमन और सुकून से रह रहे हैं, एक रास्ता है, लोग वहां से बड़े अमन और सुकून से गुजर रहे हैं, वहां पे गन डाल देना फसाद है, रास्ते को बंद कर देना फसाद है, ठीक है। लोग बड़ी खुशी से रह रहे हैं अपने घरों के अंदर, दो भाई चार भाई जितने भी हैं, भाई बहन माँ बाप खुशी से रह रहे हैं, वो आपस में नाराज हो जाना ठीक है। यानी जो चीज एक सही तरतीब के साथ चल रही है उस तरतीब को खराब कर देना क्या है, फसाद है, ठीक है। तो ऐसे लोग, ऐसा आदमी जो होता है उसे क्या कहते हैं, फसादी फसादी इंसान ठीक है। फासिद, मुफसिद भी कहते हैं, ठीक है, मुफसिद फसाद फैलाने वाला। अच्छा, अला अगली आयत है, अला इन्नहुम, मैंने आपसे बोला है कि फजूल नहीं बोले, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। इस आयत में इन्नहुम का क्या मतलब बनेगा? इन्ना का मतलब आपको आता है, इन्ना, इन्ना का मतलब पढ़ा है हमने, बेशक बेशक, या और यकीनन, हम का मतलब यकीनन या जरूर, इन्ना के ये मतलब होते हैं, ठीक है। हुम का मतलब हम वो ठीक है। तो इन्नहुम बेशक वो, ऊपर भी हुम है, यकीनन वो, ऊपर भी हुम है, इसका मतलब इनके लिए वो या उन होता है ना, इधर अमूल ना तो हम वो, मुफसिदून ये वही लफ्ज आ गया, देखिए मुफसिद ये फसाद सही है, मुफसिद कहते हैं उस आदमी को जो फसाद फैलाने वाला हो, ठीक है। और जो इस्लाह करने वाला उसे क्या कहेंगे, मुस्लिह, ठीक है। तो उसी की जमा है मुस्लिहून, मुफसिद मुफसिदून, हम नहीं वो मुफसिदून फसाद करने वाले हैं, ठीक है। वलाकिन व और लाकिन का मतलब क्या होता है, लाकिन का मतलब होता है लेकिन, लाकिन वलाकिन और लेकिन, ठीक है। लेकिन और नहीं लेकिन नहीं, या का क्या मतलब है, वो
जब किसी लफ्ज के शुरू में या आए तो वो वो। आगे क्या लफ्ज है? यशऊर शऊर। वो शऊर रखते। यशऊरून वो शऊर रखते हैं, ला यशऊरून वो शऊर नहीं रखते, वलाकिन ला यशऊरून और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। ठीक है, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। अला, अला का मतलब उन्होंने लिखा ही नहीं है। अला का मतलब होता है जान लो, जान लो, ठीक है, खबरदार, खबर ठीक है, जान रखो, जान लो, ठीक है। खबरदार का भी यही मतलब होता है, बाखबर हो जाओ, ठीक है। खबरदार बेशक वो जान लो बेशक वो वही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। लोग भी नहीं, वही बेशक वही फसाद करने वाले हैं। आप ठीक है, मासी के भी बेशक जान लो बेशक वही फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो इस बात की समझ नहीं रखते, वो समझते नहीं है, वो इस बात पे शऊर नहीं रखते, उन्हें इस बात की अक्ल नहीं है। ठीक है, कौन लोग? ये वाले लोग, ये लोग जमीन में फसाद कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के रास्ते रोक रहे हैं, आपस में रिश्तेदारों से नाराज हो रहे हैं, ठीक है, कारोबार में जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि फसाद ना करो, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है, हम तो दुरुस्ती करने वाले हैं, हम तो मामलात को सीधा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो कि यही लोग फसादी हैं, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि हम फसाद कर रहे हैं। और ये किसकी बात हो रही है? मुनाफिकीन की, ठीक है, ये सारी बात मुनाफिकीन की चल रही है। तो ठीक है, ये समझ आ गया, इसमें कोई मुश्किल बात लगी हो इस इन आयात के अंदर? नहीं, पक्की बात है। जी अब इसको बंद करो। अब